Jai Hind students, we are doing our chapter number 7 fractions, and today's topic is equivalent fractions. So student, first look at this figure. सबसे पहले आप इस फिगर को देखेंगे and this is 1/2. इस फिगर में this is 1/2. Shaded part is half. This part is shaded. One part is shaded and one part is unshaded. So total parts are 2. So this is 2 and shaded part is 1. So 1/2. Now this is 2/4. Here 2 parts are shaded and 4 total parts. 1, 2, 3, 4. Total parts are 4. And in this figure there are 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts इसमें total है and 3 parts are shaded. So 3/6. Now in this figure there are 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts इसमें total parts है 8 and 4 parts are shaded. 1, 2, 3, 4. So 4/8. Now student, in each figure only half the figure is shaded. हम देख रहे हैं इन 4 figures में half the figure is shaded. हमारा जो half figure है इस total में whole में हमारा half part shaded है, this part, and इसका total half part shaded है and half part unshaded है. Here half part means 3 part unshaded है and 3 parts shaded है, and in this figure 4 parts means unshaded part and shaded part are equal, means half the figure is shaded. So we can write 1/2 because half part is shaded in all the figures. So 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 and equal to 4/8. So students, these fractions are called equivalent fractions. So these fractions are called equivalent fractions. These fractions are called equivalent fractions. Now, अब यहां पर हमने क्या नोटिस किया है, दिस इज 1/2. 1/2 into 2/2 is equal to 1/2 into 3/3 is equal to 1/2 into 4/4. So 1/2 into 2/2 means 2/4. This is 2/4. So this equal to this. And 1/2 into 3/3. 1 into 3, 3 and 2 3s are 6. 3/6. 3/6 and 4/8 के प्लेस पर हमने लिखा है 1/2 into 4/4. So this is 4/8. So student, it shows that the multiplying the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number does not change the value of the fraction. तो इस से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर हमारा जो फ्रैक्शन है 1/2 में हम सेम नंबर से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं सेम नंबर से तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. सिमिलरली यहाँ पर 1/2 है, हमने इसमें 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कराई. सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2. एंड इस 1/2 में अगर हम 4 से और 4 से सेम नंबर से न्यूमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, सो दिस इक्वल टू दिस. So student, definition of equivalent fractions is
two or more fractions that represent the same part of a whole, जो कि होल का एक ही पार्ट शो करता है. सेम पार्ट मीन्स इक्वल पार्ट. Same part of a whole are called equivalent fractions. So this is the definition of equivalent fractions. Now we will study the properties of equivalent fractions. So student, here first property is properties of equivalent fractions. First property is if we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0, मीन्स अगर हम न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं. 1/2. So if we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number, मीन्स अगर 1/2 में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, 2 and 2, न्यूमिनेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराई एंड डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कराई, देन वी विल गेट 2/2 2 4. 1 into 2 2 and 2 2 4. If we multiply the numerator and denominator of a fraction by the same number other than 0, उसमें 0 इंक्लूड नहीं है, मीन्स हम 1 से मल्टीप्लाई करा के हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, 2 से कराएंगे तब भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा. अदर देन 0 वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 3 से अगर हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर में कराते हैं, देन वी विल गेट 3/2 3 6. तो these are equivalent fraction. 2/4 is equivalent fraction of 1/2 and 3/6 is also the equivalent fraction of 1/2. Similarly, we can find many more equivalent fractions. If we multiply by 4/4, then we will get another equivalent fraction. And if we multiply by 1/2 में अगर हम 1 से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, so we will get 1/2. तो हमें 1/2 ही मिलेगा. So 1/2 is equal to 1/2. And another example, if fraction is 1/3, so 1/3 में हम 2 से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं एंड डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं. So we will get 2/6. So 2/6 is equivalent fraction of 1/3. So 1/3 is equal to 2/6. 1/3 2/6 से इक्वल होगा. सिमिलरली 1/3 इंटू 3 से हमने कराई, सो 1 into 3 3/9. 3/9 is also equivalent fraction of 1/3. और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/3 is equal to 3/9 and 1/3 equal to 1/3 into 4/4. So 4/3 4s are 12. 1/3 equal to 4/12. So this is also the example of equivalent fraction. Means equivalent fractions लाने के लिए, इक्वल फ्रैक्शंस लाने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं 0 को छोड़कर, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो गिवन फ्रैक्शन के इक्वल होगा. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज if we divide the numerator and denominator of a fraction by the same number, अगर हम एक ही नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में को डिवाइड कर देते हैं, सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं अदर देन 0, जिसमें कि 0 इंक्लूड नहीं है, 1 से लेकर किसी भी नंबर से अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो उस टाइप से भी हमें एक जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्वल फ्रैक्शन होगा गिवन फ्रैक्शन के. सो स्टूडेंट, इफ द फ्रैक्शन इज 2/4, सो इससे हम कैसे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं. 2/4
2 भी हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 4 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो स्टूडेंट 2 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 1 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4. So 1/2 is equal fraction of 2/4. And if 3/6 3 से और डिनोमिनेटर को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें, सो 3 बन जा 3 एंड 3 2 जा 6. So 3/6 is equivalent fraction of 1/2. And if example is 12/15, 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा but 15 is not divisible by 2. So we will take, हम ऐसा नंबर लेंगे जो हमारा 12 से भी डिवाइड हो जाए, 12 भी उससे डिवाइड हो जाए एंड 15 भी डिवाइड हो जाए. सो 3 के जो टेबल है उसमें 12 भी आता है और 15 भी आता है. 12/15, 3/3. 2 से हमारा 12 डिवाइड हो जाएगा बट 15 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम 3 से चेक करेंगे. 3 से चेक करके देखेंगे तो 3 से हमारा 12 डिवाइड हो रहा है एंड 3 से हमारा 15 भी डिवाइड हो जाएगा. 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15. So 4/5 is equivalent fraction of 12/15. So student, divide करके with the help of division, means divide करके same number से, numerator and denominator, numerator और denominator में same number से हम divide करके equivalent fractions ला सकते हैं. Students, let's take an example. Find the equivalent fraction of 2/5 with numerator 6. हमें equivalent fraction find करना है 2/5 का. 2/5 का equivalent fraction हमें find करना है जिसका कि numerator हमारा 6 होना चाहिए. numerator 6. So हमें ये नंबर फाइंड करना है. ये हमें गिवन है कि न्यूमिनेटर हमारा 6 होना चाहिए बट नाउ वी विल फाइंड डिनोमिनेटर. 2 से 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इज लेस देन 6, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2/5. 2 से हम 6 को डिवाइड करके देखेंगे. इस 2 से इस 6 को हम डिवाइड करके चेक करेंगे. 2 3 जा 6 मीन्स 3. 2/5 में 3 से अगर मल्टीप्लाई करें सो 3 से ही हमें डिवाइड भी करना होगा. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने के लिए सेम नंबर से हम डिवाइड भी करेंगे एंड मल्टीप्लाई भी करेंगे. सो 2 3 जा 6, न्यूमिनेटर हमें 6 चाहिए था एंड डिनोमिनेटर विल बी 5 3 जा 15. सो फ्रैक्शन इज 6/15. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 6/15. Another example is find the equivalent fraction of 15/35. 15/35 का equivalent fraction हमें find करना है with denominator 7, जिसका कि denominator 7 हो. 15/35 is equal to numerator हमें find करना है and denominator given है 7 होना चाहिए. Equivalent fraction 35 is greater than 7. तो हम क्या करेंगे, 7 से 35 को डिवाइड करके 7 5 से 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें 7 मिलेगा. इसी तरह से हम 15 में भी 5 से डिवाइड करेंगे. 15 डिवाइडेड बाय 5 एंड 35 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 7 जा 35 and 5 3 जा 3/7. So fraction will be 3/7. Equivalent fraction is 3/7 of 15/35. So student, next topic is simplest form. A fraction is
said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1. ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, 3/7। 3/7 अगर हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करें, 3 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 3 एंड 7 का होगा 1 इंटू 7। सो कॉमन फैक्टर इज 1। सो 3/7 इज in simplest form and 2/5 is also in simplest form because it has only one common factor and that is 1 into 2 and 1 into 5. so यहाँ पर हमारा जो कॉमन फैक्टर है 1 है, so this is in simplest form. Now students, take an example. Reduce the following fraction in simplest form. किसी भी फ्रैक्शन को हम किस टाइप से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सो स्टूडेंट 36/24 इसके हमारे 2 मेथड्स हैं। 36/24 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। 36 प्राइम फैक्टर हम इसके फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो फैक्टर्स ऑफ 36 2 into 2 into 3 into 3 एंड 24 के फैक्टर होंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो 2 2 2 2 सॉरी 3 2 2 2 एंड 3, 2 into 2 into 2 into 3। नाउ 2 से 2 कैंसिल, 2 2 इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर इज 3/2। 3/2 नाउ इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। एंड अनदर मेथड इज, इसका एक और मेथड है 36/24। 36 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा एंड 24 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे, ये रख करके हमारा 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, सो 18। 2 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे देन 18 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12। नाउ अगेन वी विल डिवाइड बाय 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। अब ये 9/6 जो है वो हमारा 2 से डिवाइड, 9 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो वी विल डिवाइड बाय 3 से हम चेक करेंगे देन 9/6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। सो आंसर इज 3/2। स्टेप से भी हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और प्राइम फैक्टर्स के थ्रू भी हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 21/35। 21/35 21 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। सो फैक्टर्स आर 3 into 7। नाउ 35 के प्राइम फैक्टर, 35 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, देन वी विल डिवाइड इट बाय 5, 5 7 जा एंड 7 1 जा। सो प्राइम फैक्टर ऑफ 35 5 into 7। नाउ 7 से 7 कैंसिल, सो 3/5।
Now 3 upon 5 is in simplest form. Now we can take another example. 48 upon 60. 48 अपॉन 60 के लिए सबसे पहले हम 48 के फैक्टर करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 48. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3. 2 2 2, 1 2 3 4. 4 टाइम्स हमारा 2 है एंड 1 टाइम 3. एंड नाउ 60 के हम फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 60 के फैक्टर करेंगे. 2 3 जा 6 एंड 3. 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 एंड 2 5 जा 10, 5 1 जा 5. So these are prime factor of 60. 2 हमारा 2 टाइम्स है, 2 into 2, then 3 and 5. Now 2 से 2 cancel, this 2 and this 2, 3 3. So 2 2 जा 4 and 5. 4 upon 5 is in, now it is in simplest form. So 4 upon 5. So student, now 4 upon 5 is in simplest form. So student, with the help of this video, you can attempt your given exercise 7.3. Thank you.